Hello my dear children, you're most welcome in class 12th accountancy. Today is the topic we are going to study redemption of debenture. Redemption of debenture the procedure and accounting treatment, how the debentures are redeemed. You know it very well. Debenture is the written acknowledgement of the debt of a company. मतलब ये एक प्रकार का ऋण पत्र होता है जो रिटेन होता है, लिखित प्रमाण पत्र होता है कि कंपनी ने अपने फंड को रेज करने के लिए डिबेंचर इशू किया है। तो हम दोनों प्रोसीजर आपको बताएंगे जिसमें आप डिबेंचर को इशू कैसे किया जाता है और उसे रिडीम कैसे किया जाता है। द प्रोसीजर ऑफ redeeming the debenture and issue of the debenture. So redemption means discharge of the liability. Redemption means discharge of the liability of the debenture. Whatever the amount received by the company by issuing the debenture, raising its fund according to the Company Act, what are the procedure adopted, redeeming the debenture, just I would like to tell you. First, the first procedure you can see over here, debenture issued at par. Issued at par and redeemed at par. Redeemed at par. With one example that will be taken into consideration and explain the sixth method how the debentures will be issued and how they will be redeemed. Now see, suppose that X is the company, X one of the company issued debenture in 100 rupees. The face value of the debenture. Face value of debenture. Debenture 100 rupees. Debentures issued by the company. We are taking the example of only 100 rupees so that you could understand the fact and you can observe the fact. First, issued at par and redeemed at par. When the debentures are issued, just we can, this one is the issued entry and there you can see the redeemable entry. First entry will be bank account debit. Bank account debit to debenture application and allotment. समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, आप देखेंगे कि बहुत आसान लगेगा, लेकिन से यदि आप इसे अच्छे ढंग से
जानेंगे नहीं तो निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 क्लियर? देन द सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। And redeemable entry, just when after 5 years or 4 years or 2 years or 3 years the debentures are redeemed, then what will be the entry of redemption? You can find debenture account debit, debenture account debit to debenture holder, to debenture holders। कहने का मतलब यह है बेटा, जब हम डिवेंचर यहां पर क्रेडिट है इशू के टाइम में, तो इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब क्रेडिट कर दिए हम क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। आप देखेंगे 100 रुपीज से, अब इसको ड्यू कर दिया, फिर ऑन मेकिंग पेमेंट, जब हम पेमेंट करेंगे तो कौन पाएगा पैसा, डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने कंपनी का डिवेंचर परचेज किया है। तो होगा आपका एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अप्लाई द रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, receiver is the debit, what goes out credit, 100। This one is the first condition। In second condition, issued at par, issued at par, issued at par and redeemable at premium, redeemable at premium। Suppose that 100 rupees debentures issued by the company and after 5 years 5 rupees premium, 5 रुपीज प्रीमियम पर इसे रिडीम किया जाएगा। मतलब पेमेंट 100 रुपए के भाव से हमने कर्ज लिया और 105 रुपए के हिसाब से हम इसे पेमेंट देंगे। तो इशू के टाइम एंट्री जो फर्स्ट एंट्री है सेम होगी ये वाली, और इशू के टाइम जो एंट्री होगी वह क्या होगी, जब इसे डिवेंचर में हम ट्रांसफर करेंगे तो जो सेकंड एंट्री, ये एंट्री तो हर जगह होनी है, ये एंट्री आपकी हर जगह होनी है। कैसे देखें, जब आप रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर को, ये मैं मिटाता जा रहा हूं, आप ध्यान देते रहेंगे, ये एंट्री तो उसी तरह होगी। दूसरी एंट्री होगी अब रिडीम्ड एट प्रीमियम, 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 रिडीम्ड एट प्रीमियम।
क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। कल से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। मैं केवल आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपने डिवेंचर को इशू किया पार पर, मतलब फेस वैल्यू पर, और रिडीम करेंगे प्रीमियम पर। तो ये पहली एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसे डिवेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे जब, तो होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये 100 रुपीज हो गए आपके, 100 रुपीज। उसके बाद हम जब इसे रिडीम कर रहे हैं तो हम किस पर कर रहे हैं? प्रीमियम पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। भाई 5 रुपए हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये 5 रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। अब जो टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू क्रेडिट जो करेंगे डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, हमारा जो फेस वैल्यू है, ध्यान रहे, जो डिवेंचर का फेस वैल्यू होता है वही डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। 100 रुपीज अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। एक न्यू जब लॉस होता है रिडेम्पशन पर, तो एक नया अकाउंट खोलता है जिसका नाम है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। ये फाइल। अब ये प्रश्न उठता होगा बेटा कि हम ये चीज, ये 5 रुपए कहां से लाएंगे? तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है या कंपनी का रिजर्व फंड होता है, जनरल रिजर्व होता है, जो आपको हमने बैलेंस शीट में बताया हुआ है कि एक सब हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड में, उससे इसको मीट करते हैं। ये बियर 5 रुपए उसी से किया जाता है। अब यहां पर जो एंट्री होगी रिडेम्पशन के टाइम, इस कंडीशन में आप देखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब इसे कहां से हम ले लेंगे? यहां पर देख रहे हैं कि एक अकाउंट खुला है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट अकाउंट, क्रेडिट किया गया है इशू के टाइम में। यहां पर जब हम इसे रिडीम करेंगे तो इसे डेबिट कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये 5 रुपीज हो गए टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर्स 105। देखिए, मतलब हमको जो करना है वो किस तरह से करना है, यही चीज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो हमारा 100 रुपीज डिवेंचर में है। अब इसे हम रीपेमेंट कर रहे हैं, पुनः भुगतान कर रहे हैं, तो 100 रुपए तो ये ले लिया, 5 रुपए हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि हमारा ये शर्त रहा है कि हम 100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर को इशू करेंगे और 105 रुपए के हिसाब से भुगतान करेंगे। तो वो 5 रुपए जो है हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट से लिया गया 105 रुपीज। अब पेमेंट कर दीजिए,
डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप पेमेंट कितने का कर देंगे? 105 रुपीज का, 105 रुपीज का। ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए और सुनते जाइए, आपको क्वेश्चन बड़े आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये तमाम सीपीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। अब तीसरा कंडीशन बता रहे हैं, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। In third condition, just you can see, third condition, issued at discount, and redeemed at par। इसका मतलब यह हुआ, सपोज दैट कि हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, मतलब 100 रुपए वाले डिवेंचर हम 95 रुपीज में इशू कर रहे हैं, 5 रुपए डिस्काउंट पर। फर्ज कीजिए, एज्यूम दैट यू आर सपोज टू डू दिस थिंग्स, जस्ट द 100 रुपीज डिवेंचर्स इशूड बाय द कंपनी एज 95 रुपीज। 95 रुपीज के हिसाब से इन्हें हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 95 रुपीज के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो होगा बेटा, वो 95 रुपीज का हो जाएगा। यहां पर 95 रुपीज, 95 रुपीज टू डिवेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज, 95 रुपीज। अब जो एंट्री करेंगे, जब इसे डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पर 95 हो गया। अब जो हम छूट पर ये कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो छूट दे रहे हैं, चूंकि कंपनी का नुकसान है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू डिवेंचर, टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज। रिडीम जब करेंगे तो आप सीधे यहां पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, सीधे 100 रुपीज से आप क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कर देंगे आप डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। मतलब 95 के भाव से आपने डिवेंचर इशू किया था और 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया। इस तरह से ये तीसरा कंडीशन है। चौथे कंडीशन ये आ सकता है कि इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। सपोज दैट
debentures are issued by the company, 100 rupees of debenture issued by the company as 95 rupees and redeemed as 5% premium, मतलब 105 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो यहां पर एंट्री जो है ये तो 95 रहेगा ही। अब उसके बाद आपकी एंट्री जो बदलेगी वो क्या होगी, देखिए डिबेंचर्स इशू के टाइम डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 और यहां पर ले लेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितने का नुकसान हो रहा है, देखिए 95 रुपए के हिसाब से आप इशू कर रहे हैं और 105 रुपए के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, रिडीम करेंगे, रीपेमेंट करेंगे 5 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी टर्म्स और कंडीशन हो। तो आप देखेंगे 5 रुपए डिस्काउंट का और 5 रुपए प्रीमियम का, नुकसान कितने का हो गया, 10 रुपीज का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट, ये तो आपका फेस वैल्यू ही जाएगा 100 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जब भी प्रीमियम होगा ये खाता न्यू अकाउंट ओपन हो जाता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 आपका हो गया। अब देखिए 105 यहां पर तुरंत वही चीज आएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो आपका 100 रुपीज है। अब यहां पर एक एंट्री आ जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट इसको कर देंगे, डेबिट 5 रुपए और यहां डिबेंचर होल्डर्स के खाते में आ जाएगा 105, उसी अनुसार आप पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 105 रुपीज, 105। आपने 4 कंडीशन मतलब पढ़ लिया। एक तो होता है